Good morning, students. Yesterday we are discuss about मैनेजमेंट प्रोसेस की जो फंक्शंस है उनको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि these functions are can be divided in two parts, की फंक्शंस ऑब्लिक मेन फंक्शंस। तो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे की या मेन फंक्शंस क्या है। On the analysis of the table mentioned above, there are similarity of three functions among different management thinkers. These functions are planning, organization, and control. Therefore, following points can be included in the main functions of the management. Yesterday, we are study फर्स्ट फंक्शंस मेन फंक्शन में प्लानिंग को हमने इसमें स्टडी किया था। आई होप यू आर अंडरस्टूड बेटर। एंड सेकंड अपना जो इसमें फंक्शन था उसको भी हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया था। टुडे वी आर कंटिन्यू और रिमेनिंग टॉपिक। इसमें अपन जो फंक्शंस पढ़ रहे थे उसमें थर्ड अपना है वो है डायरेक्शन। इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का डायरेक्शन। जनरली द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डायरेक्शन। देखो जनरली डायरेक्शन क्या है, द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डायरेक्शन। हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनके थ्रू जो वर्क कर रहे हैं उसकी जो आर्ट है वो डायरेक्शन है जनरली। इन अदर वर्ड इट इंक्लूड गिविंग ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर वर्क टू अचीव द predetermined objectives, as also to provide leadership and guidance to them and supervising their activities. Direction is one of the most important function of management because its success of plans, accomplishment of work, best utility of resources, obtains knowledge of human being, establishing of effective coordination and develop of managerial ability। जो अपना डायरेक्शन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको अंडरस्टूड करने के लिए हम एक बेस्ट जो एक एग्जांपल है वो ले सकते हैं। गुड एग्जांपल इज़ फाउंड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इन 1970 ऑन ए रोमांटिक नोवेल देवदास। सुना होगा आपने देवदास के बारे में, एक रोमांटिक नोवेल है देवदास। तो 1970 ऑन ए रोमांटिक नोवेल देवदास रिटर्न बाय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय फ्रॉम 1927 to 2013। 15 film directors made 16 films in Hindi and regional language। ये 1917 में एक रोमांटिक नोवेल आया था देवदास, जिसके राइटर थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उनके इस नोवेल पे 1927 से 2013 तक 15 फिल्म डायरेक्टर्स मेड 16 फिल्म्स इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, बट द रिजल्ट ऑफ ऑल डिफरेंट earning. This is a unique example of making so many films based on a novel. The major research University of America has done a comparative study of presentation of films made in 4 times in Hindi, that is 1935, 1955, 2002 and 2009.
The film director directs acting heroes, heroines, villains, and all the characters. The composer, the cameraman, the dress designer, and the commander of all the people are in the production of the film motivate, explore, and examines, then combines the prepare the film for release. इस तरह से एक फिल्म इन्होंने बनाई अलग अलग डायरेक्टर्स ने। एक जो अपना नोवेल था उसको लेकर देवदास, और सब की जो अर्निंग थी वो डिफरेंस थी। तो इस पर रिसर्च किया गया और पाया गया कि ना सबके जो है ना डायरेक्शन था, जो इसके ना डायरेक्टर्स जो हैं इनके द्वारा दिया गया वो डिफरेंस था, इसलिए इसके जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंस मिले। तो यहाँ एक बेस्ट एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं। आइए हम इसको एक बार यहाँ से फिर से देखें। डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, most important function of the management, because it is success of plans, accomplishment of work, best utilities of resources, obtain knowledge of human being, establish of effective coordination, and develop of managerial ability. Directing function involves main factors or elements as follows. फर्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है सुनिए। डिसिप्लिन हेल्प टू गेट द वर्क डन इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एंड इट आल्सो एंश्योर दैट देयर इज ए healthy work environment is discipline. Order and instructions. Instruction. Issuing orders or instruction to do or not to do a work is another factors of direction. And third, delegation of authority. Under this factor, the subordinates are given power so that they can perform their duties effectively. But at the time of delegation of authority, it should be ensured that a reasonable amount of authority should be delegated. It should neither be more than that what is required, nor it should be less. Next, communication. In this factor of direction, supervisor issue instruction to subordinates, and the subordinates follow them and work accordingly. Next है motivation. It is also a factor in which people are made to perform their work willingly, in help to satisfy the employees and motivate them to work better. Next, leadership. Leadership is influencing the behavior of other. Under this factor, the leader uses his skill to influence the subordinates. And last है supervision. It means overseeing the activities of the subordinates की जो activities है, all the activities जो subordinate उनको overseeing मतलब कि उसको एकदम गहरी नज़र से उसको देखना। देखिए इसका अगर हम इसको है ना दो भागों में इसको बांटे तो होता है सुपर और विज़न। सुपर मतलब होता है बहुत अच्छी जो शानदार होती है, और विज़न यानी दृष्टि, तो बहुत अच्छी दृष्टि अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ पे रखना, ये सुपरविज़न। यस जी। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कंट्रोल। विथ कंट्रोल एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजरियल टास्क इज़ पॉसिबल। कि जो है ना जो अपना कंट्रोल है उसी के साथ हम है ना अपने जो टास्क है मैनेजरियल टास्क उनको संभव कर सकते हैं इफ़ेक्टिव, और उसको शानदार तरह से उसका निष्पादन कर सकते हैं।
जो अपना एग्जीक्यूशन है उसका मतलब होता है निष्पादित करना, उसको संपन्न करना, पूरा करना। तो विथ कंट्रोल एफिशिएंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजरियल टास्क इज पॉसिबल। कंट्रोल मीन्स चेकिंग एंड करेक्टिंग, चेक करना और उसको करेक्ट करना, सही करना अगर वो कहीं पे गड़बड़ है तो कंट्रोल मीन्स चेकिंग एंड correcting activities in order to ensure that things occur in accordance with the plans। हमें अपने प्लान के अनुसार जो एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक करना। तो यहाँ कंट्रोल मीन्स चेकिंग एंड करेक्टिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर, जो एक्टिविटी जो अपने ऑर्डर्स में होनी है उसका एक ना अपने जो सीक्वेंस बना है हमको उसको श्योर करना है कि उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको हमें ना करेक्ट करना है, हमको श्योर होना है कि उसके अकॉर्डेंस ही हो। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल ने इसको क्या बताया, कंट्रोल को किस तरह से उन्होंने ना डेफिनेशन दी है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल कंट्रोल इज टू कंट्रोल इज टू चेक वेदर all the functions or the plans organization are executive according to the instruction given and prescribed results। जी, यहाँ अपने जो कंट्रोल है उसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ हमें ये चेक करना है, चेक वेदर ऑल द फंक्शंस और प्लान, कि अपने के जो सारे के सारे कार्य और योजनाएं जो चल रही है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आर एग्जीक्यूटेड टू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन एंड प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, कि जो अपने कार्य योजनाएं चल रही है वो दिए गए निर्धारित नियमों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं, जो रूल्स हमारे प्रिस्क्राइब मतलब कि तय हैं, बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डेंस अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही है, यानी ऑल द फंक्शंस और प्लान्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ना अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन एंड प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डेंस है कि नहीं है। द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल इस डेफिनेशन में इंक्लूड है ये। द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल अपना जो ये फंक्शन एक्टिविटी है उसका मेन ना अपना पर्पज़ क्या है, तो द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल इज़ टू फाइंड आउट एरर्स। इसका जो प्रोसेस ये पर्पज़ है वो ये है कि हमें ये चेक करना है, फाइंड करना है, उसको खोजना है आउट एरर्स इन द वर्क, कार्य में जो कोई कमी है, जो एरर आ रहे हैं, जो एरर मतलब त्रुटियाँ, कमियाँ जो है इन द वर्क्स, उसको खोजना, उसका पता लगाना है, उसको जानना है। तो फाइंड आउट एरर्स इन द वर्क दे बाय इम्प्रूविंग एट एज मच एज पॉसिबल, और यथा समय और जितना हो सके इसमें हमें सुधार करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखनी है, एंड प्रिवेंटिंग रिपीटेशन ऑफ सच एरर इन द फ्यूचर। और ये भी हमें एक बात है ना वो श्योर करनी है कि प्रिवेंटिंग रिपीटेशन ऑफ सच एरर इन द फ्यूचर, कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां दोबारा ना हो, रिपीटेशन ना नहीं होनी चाहिए उनकी रिपीटेशन होगी तो फिर अपना जो कंट्रोलिंग है वो बेटर नहीं है। जी, देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस। जो अपनी कंट्रोल प्रोसेस है उसके ना मेन एलिमेंट्स है वो 4 बताए गए हैं। 4 कौन कौन से आइएगा उनको हम देखेंगे। फर्स्ट है डिटर्मिंग द स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड है यानी कि स्टैंडर्ड होता है प्रमाप, पहले से तय होता है कि हमें कितना कार्य कब तक करना है, तो प्रमाप का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड। एंड सेकंड है इवेल्युएटेड द वर्क एंड प्रिपेयर द रिजल्ट डिटेल। जो अपने कार्य हो रहे हैं उनका ना मूल्यांकन इवेल्युएटेड यानी कि मूल्यांकन, उसको हमें ना उसका वैल्यूएशन करना है। इवेल्युएटेड द वर्क एंड प्रिपेयर द रिजल्ट डिटेल, और उसके अब तक के जो रिजल्ट्स हैं उनके जो डिटेल हैं वो प्रिपेयर करने हैं। थर्ड है टू
कंपेयर डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल रिजल्ट्स। जो एक्चुअल रिजल्ट्स है और अपने जो है ना स्टैंडर्ड है उनको हमें कंपेयर करना है। एंड 4 है टू फाइंड डिविएशन, जो हमें डिविएशन जो फाइंड हुए हैं, एंड मॉडिफाई और टेक करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन डेविएशन। जो अपने डेविएशन हुए हैं उस डेविएशन के अकॉर्डिंग उसके बेस पर हमें मॉडिफाई एंड टेक करेक्टिव एक्शन यहाँ पे लेना होगा। ये इसके ना 4 मेन एलिमेंट्स अपने कंट्रोल के है। एंड नेक्स्ट है अपना कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, आइए देखिए। कोऑर्डिनेशन होता है एडजस्टमेंट करना। वेरियस टाइप जो डिपार्टमेंट्स है उनमें एक्टिविटीज़ में, रिसोर्सेज में, या जो ह्यूमन्स अपने जो ह्यूमन पावर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ है, तो उन सब में ना एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब कि ना सामंजस्य है, एडजस्टमेंट। देखिए क्या है कोऑर्डिनेशन। इन जनरल टर्म्स स्टैब्लिशिंग एडजस्टमेंट अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स। विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स है, वेरियस टाइप डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज एंड द पर्सन्स टू अचीव predetermined objectives of the organization is called coordination। एक बार फिर, in general terms establishing adjustment among various departments, activities, resources and the persons to achieve predetermined objective of the organization is called coordination। कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ना वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट है, एक्टिविटीज़ है, रिसोर्सेज है, पर्सन्स है, उन सब में ना हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट स्थापित करना है, यानी कि इस्टेब्लिशिंग एडजस्टमेंट करना है, ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम अचीव कर सके, इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इन अदर वर्ड इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यह एक मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन है विच सो स्टैब्लिश्ड इंटीग्रेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज एंड देयर ग्रुप्स दैट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एट लोवेस्ट कॉस्ट इज फैसिलिटेड। कि हम अपने उद्देश्यों को कम खर्चों पर पूरा कर सकें, इसलिए विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स है, एम्प्लॉयज़ है या ग्रुप्स है, इन सब में अच्छे संबंध, मतलब कि ना अपने जो एक उनके रिलेशन है वो बेटर होने चाहिए। इस तरह का जो कार्य किया जाएगा वो होगा अपना कोऑर्डिनेशन। इसके फेवर में मैसी ने कहा है कोऑर्डिनेशन इज़ ए रिजल्ट ऑफ, फिर से सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन इज़ ए रिजल्ट ऑफ reasonable execution of other managerial functions. In addition this, Kuntas and O'Donnell also said that coordination is the sense of management. Coordination is the sense of मैनेजमेंट। देखिए इनको समझिएगा। मेसी ने क्या कहा है, मेसी ने कहा है कोऑर्डिनेशन इज़ ए रिजल्ट ऑफ रीजनेबल एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन। तो मेसी ये बता रहे हैं कि जो समन्वय है वो अन्य जो इसके अदर जो फंक्शन है अपने किसके मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शन है समन्वय अन्य प्रबंधकीय कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। ये जो रिजल्ट है, कोऑर्डिनेशन इज ए रिजल्ट, कोऑर्डिनेशन एक रिजल्ट है कहीं का है ऑफ रीजनेबल एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन। जो अदर मैनेजरियल फंक्शंस है उनको हमने ठीक ढंग से पूरा किया है, इसका रिजल्ट कोऑर्डिनेशन है, इसका रिजल्ट कोऑर्डिनेशन है। एंड Kuntas and O'Donnell also said that coordination is the sense of management। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, coordination is the sense of management। जो coordination है वो अदर फंक्शन है, वो एक ऐसा फंक्शन है जो अपने जो ना जैसे इसमें यहाँ पे बताया हुआ है